سب سے پہلے بات کریں گے حکومت پاکستان کی جانب سے عوام کو ریلیف کا سلسلہ جاری۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر کمی۔ پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر کمی، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 40 پیسے فی لیٹر کمی۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے فی لیٹر کمی کی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 247 روپے فی لیٹر مقرر، جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت 240 روپے 29 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، حکومت پاکستان کی جانب سے عوام کو ریلیف کا سلسلہ جاری۔ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر کمی۔ پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر کمی، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 40 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے فی لیٹر کمی کی گئی، جبکہ پیٹرول کی نئی قیمت 247 روپے فی لیٹر مقرر اور ڈیزل کی نئی قیمت 240 روپے 29 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں حکومت پاکستان کی جانب سے عوام کو ریلیف کا سلسلہ پھر کمی کی گئی۔ پیٹرول کی قیمت میں 2.7 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 40 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 3 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے، جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 57 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 247 روپے 3 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے، جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت 246 روپے 29 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات 12 بجے سے ہوگا۔ ایک طرف تو ریلیف ہے تو دوسری طرف تکلیف ہے۔ مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کے لیے بری خبر، ریلیف کے 3 ماہ مکمل ہو چکے، بجلی صارفین تیار ہو جائیں۔ بنیادی ٹیرف فی یونٹ 7.12 روپے تک بڑھ جائے گا۔ وفاقی حکومت نے ماہانہ 200 یونٹس تک بجلی صارفین کو 3 ماہ کا ریلیف دیا تھا۔ شہریوں کا کہنا ہے غریب آدمی پہلے ہی بل ادا نہیں کر پا رہے، مزید بوجھ تو ایک ظلم ہے۔ عام آدمی کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے۔ شہریوں اور تاجروں کا حکومت سے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ ہے۔ کمی کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ مہنگائی کی چکی میں پسی عوام کے لیے بری خبر آ گئی، ریلیف کے 3 ماہ مکمل، بجلی صارفین ہو جائیں تیار۔ بنیادی ٹیرف فی یونٹ 7.12 روپے تک بڑھ جائے گا۔ وفاقی حکومت نے ماہانہ 200 یونٹ تک بجلی صارفین کو 3 ماہ کا ریلیف دیا تھا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ غریب آدمی پہلے ہی بل ادا نہیں کر پا رہا، مزید بوجھ ظلم ہے۔ عام آدمی کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے۔ شہریوں اور تاجروں کا حکومت سے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ۔ ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ، فی کلو ایل پی جی 7 روپے 31 پیسے مہنگی ہوگی۔ گھریلو سلنڈر 86 روپے 28 پیسے مہنگا، نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ ایل پی جی کی فی کلو قیمت 251 روپے 30 پیسے مقرر۔ 11.8 کلو گرام کے گھریلو سلنڈر کی قیمت 2965 روپے 38 پیسے مقرر کر دی گئی۔ بجلی کے بعد ایل پی جی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ فی کلو ایل پی جی 7 روپے 31 پیسے مہنگی ہو گئی ہے۔ گھریلو سلنڈر 86 روپے 28 پیسے مہنگا ہو گیا، اس پر نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ایل پی جی کی فی کلو قیمت 251 روپے 30 پیسے مقرر کر دی گئی۔ 11.8 کلو گرام کے گھریلو سلنڈر کی قیمت 2965 روپے 38 پیسے مقرر کر دی گئی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائے، رحیم یار خان میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا۔ اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ دال مونگ اور دال چنا 40 روپے فی کلو مہنگی ہو چکی۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث عام آدمی کے لیے گھر چلانا بھی مشکل ہو گیا۔ رحیم یار خان میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا۔ اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ دال مونگ اور دال چنا 40 روپے فی کلو مہنگی ہوگی۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث عام آدمی کے لیے گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ رحیم یار خان میں مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول، اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے اضافہ ہو گیا۔ برانڈڈ گھی 10 روپے فی کلو مہنگا ہو کر 435 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا۔ دال مونگ 40 روپے فی کلو مہنگی ہو کر 340 اور دال چنا 400 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ ڈیمانڈ میں اضافہ اور سپلائی میں کمی کے باعث گھی اور دالیں مہنگی ہوئی۔ آئندہ دنوں میں بھی گھی اور دالیں مزید مہنگی ہو سکتی ہیں۔ دالیں 30 سے 40 روپے کلو مہنگی ہوئی ہیں اور گھی 15 سے 20 روپے کے جی جو ہے وہ مہنگا ہوا ہے۔ اس کی وجہ گھی کی تو وجہ جو ہے وہ یہی ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ اسٹرانگ ہے، اسی وجہ سے اس کا ریٹ انکریز ہوا ہے۔ دالیں بھی موسٹلی جو ہیں دال مونگ اور دال چنا یہ باہر سے آتی ہیں اور ان کے ریٹ بھی اسی وجہ سے انکریز ہوئے ہیں کیونکہ لوکل مارکیٹ ان کی بھی انکریز ہوئی ہے۔ اس وجہ سے یہ لوکل مارکیٹ میں بھی ان کے ریٹ 40 سے 50 روپے پر کے جی دال کا اور 15 سے 20 روپے پر کے جی گھی کا جو ہے وہ ریٹ بڑھا ہے۔
महंगाई से परेशान शहरों ने आला हुकाम से अशिया खुरनोश की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया ताकि आम आदमी का मियार जिंदगी बुलंद हो सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तौसी नहीं होगी। एफबीआर ने सोशल मीडिया पर तारीख में तौसी की खबरों की तरदीद कर दी। आपको अपडेट करें, इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तोसी नहीं होगी। एफबीआर ने सोशल मीडिया पर तारीख में तोसी की खबरों की तरदीद कर दी है। जुर्माना और सजाओं से बचने के लिए गोशवारे फौरी जमा कराएं, एफबीआर का ऐसा कहना है। मौसमी तब्दीली होते ही डेंगू मच्छरों की जलगार। बहावलपुर में डेंगू मच्छरों ने शहरियों को निशाने पर रख लिया। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में जेर इलाज 4 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। डेंगू के जेर इलाज मरीजों की तादाद 5 होगी। शहर के अस्पतालों में डेंगू के मुश्तबा 14 मरीज लाए गए। मौसमी तब्दीली होते ही डेंगू मच्छरों की यलगार। बहावलपुर में डेंगू मच्छरों ने शहरियों को निशाने पर रख लिया। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में जेर इलाज 4 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। डेंगू के जेर इलाज मरीजों की तादाद 5 हो चुकी है। शहर के अस्पतालों में डेंगू के मुश्तबा 14 मरीज लाए गए। मौसमी तब्दीली के साथ शहरी डेंगू मच्छर के निशाने पर। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में जेर इलाज 4 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। डेंगू के तस्दीक शुदा केसेस में 3 इस्लामाबाद, 1 कराची प्लस ट्रैवल हिस्ट्री का केस शामिल है। चारों डेंगू कन्फर्म केसेस का ताल्लुक आबाई इलाकों बहावलपुर, बस्ती चौक जावर, नूरपुर नरंगा और सादिक कॉलोनी से है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर के अस्पतालों में डेंगू मुश्तबा 14 मरीज रिपोर्ट हुए। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 11, सर सादिक अब्बासी अस्पताल में 3 मुश्तबा मरीज लाए गए। विक्टोरिया अस्पताल डेंगू आइसोलेशन वार्ड में जेर इलाज मरीजों की तादाद 5 हो गई। रवां साल शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में रिपोर्ट होने वाले डेंगू मस्बत केसेस की तादाद 80 हो गई। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 77, सर सादिक अब्बासी अस्पताल में 3 केस रिपोर्ट हुए। रवां साल डेंगू वायरस से कोई शहरी जाम बहक नहीं हुआ। महकमा सेहत के मुताबिक जिला में 1800 से ज्यादा डेंगू हॉटस्पॉट्स मौजूद हैं। अब तक डेंगू हॉटस्पॉट्स की 100% कवरेज को यकीनी बनाया गया है। डेंगू हॉटस्पॉट्स की 100% कवरेज को यकीनी बनाया गया है। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। दरिंदा स्थित पुलिस एहलकार की मैट्रिक की तालिबा के साथ मुबैना ज्यादती। लड़की को मौजमाबाद घर में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अफसोसनाक वाक़े का सख्त नोटिस दिया। आईजी पंजाब से रिपोर्ट तलब, मुल्जिमान को कैफिर किरदार तक पहुंचाने का हुक्म। अगवा और मुबैना ज्यादती के वाक़े पर डीपीओ सरगोदा का भी नोटिस। इंक्वायरी टीम को हंगामी बुनियादों पर तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया गया। दरिंदा सिर्फ पुलिस एहलकार की मैट्रिक के तालिबा के साथ मुबैना ज्यादती। लड़की को मौजमाबाद घर में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया गया। इस पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सख्त नोटिस लिया है। आईजी पंजाब से रिपोर्ट भी तलब कर ली। मुल्जिमान को कैफिर किरदार तक पहुंचाने का हुक्म दिया। अगवा और मुबैना ज्यादती के वाक़े पर डीपीओ सरगोदा का भी नोटिस। आपको बता रहे हैं, लड़की को मौजमाबाद घर में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े का सख्त नोटिस। आईजी पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली गई। जीरा गाजी खान में विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पहले इलेक्शन का आखिरी मरहला मुकम्मल हो गया। नूरुस सबा सदर, शाहीन सुल्तान सीनियर नायब सदर और आयशा फातिमा नायब सदर मुंतखब हो गई। जीरा गाजी खान में विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पहले इलेक्शन का आखिरी मरहला मुकम्मल। नूरुस सबा सदर, शाहीन सुल्तान सीनियर नायब सदर और आयशा फातिमा नायब सदर मुंतखब हो गई। डेरा गाजी खान विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पहले इलेक्शन का आखिरी मरहला मुकम्मल हो गया। बानी विमेन तिजारत और सन्नत फरहा बशीर का कहना था कि ये पहला इलेक्शन है जिसमें नूरुल सबा सदर, शाहीन सुल्तान सीनियर नायब सदर और आयशा फातिमा नायब सदर की नशिस्त पर बिला मुकाबला मुंतखब हुई हैं। हमारा फर्स्ट इलेक्शन था और हमारा 2021 को लॉन्च हुआ था ये चैम्बर, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें 3.25 साल होने वाले हैं और ये बड़ी खुश असलूबी के साथ इलेक्शन हुए हैं। कोई लड़ाई झगड़ा या दूसरी कोई सिचुएशन पैदा नहीं हुई। हमारे लिए सबसे आसानी बात है। फरहा बशीर का मजीद कहना था कि बिला मुकाबला मुंतखब होने वाली खवातीन की तादाद 10 है। कारपोरेट क्लास से शाहीन सुल्तान सीनियर नायब सदर की नशिस्त पर मुंतखब हुई हैं। एसोसिएट क्लास से फरहत यास्मीन, राना यास्मीन, आयशा फातिमा, नूरुल सबा, आयशा जान खोसा, शहला रुबाब, अनिला कादिर, इमामा इसहाक और खोला अमजद मुंतखब हुई हैं। अरकान टोटल हमारी 10 हैं और एसोसिएट 9 हैं और जो हमारी कॉरपोरेटिव में आ रही है एक फीमेल वो 1 है और बाकी 2 जो हैं हमारे टोटल इस तरह से कॉरपोरेटिव 3 हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो एक कॉरपोरेटिव 1 फीमेल आई है और 9 जो है ना वो एसोसिएट में आ रही हैं।
فرح بشیر کا کہنا ہے کہ نو منتخب خواتین کی حلف برداری ساتھی اراکین کی مشاورت کے بعد جلد کروائی جائے گی۔ کیمرہ مین مجتبیٰ سرور کے ساتھ بیورو چیف اقبال صادق، روہی، ڈی جی خان۔ مظفر گڑھ کے علاقہ روہیلا والی میں خاتون اور اس کی بیٹی پر تیزاب پھینکنے کا معاملہ، مقدمے میں نامزد ملزمان کے لواحقین کا روہیلا والی میں احتجاج، علاقہ مکین بھی بڑی تعداد میں احتجاجی مظاہرے میں شریک تھے۔ مظفر گڑھ کے علاقے روہیلا والی میں تیزاب گردی کیس میں گرفتار ملزمان کے لواحقین کا احتجاج۔ موزہ محال خاکی جنوبی بستی ملانہ کے مکینوں کا کہنا تھا کہ پولیس تھانہ روہیلا والی نے عمران، عرفان، بشیر احمد اور خادم حسین کو غلط طور پر ملوث کیا۔ مظاہرین نے مقدمے کو فوری طور پر ڈسچارج کرنے اور گرفتار افراد کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ جو معاملہ ہوا نا تیزاب گردی کا تھانہ روہیلا والی میں، ہم اس کی اپیل کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ اوریجنل نہیں ہے، یہ 2 نمبر معاملہ کیا گیا ہے۔ ہم آپ کے توسط سے اعلیٰ حکام سے یہ التجا کرتے ہیں کہ اس کی اوریجنل تفتیش کی جائے۔ ہمارے مجرم بے گناہ ہیں، ہم بے گناہی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، ہمیں انصاف یعنی فل فور نہیں انصاف ملا جائے۔ گرفتار ملزمان کے لواحقین کا کہنا تھا کہ سویرا بی بی پر تیزاب پھینکنے کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے اور ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن اس کیس کی آڑ میں خاندانی تنازعات کے باعث گاؤں کے شرفا کو ملوث کرنا اور گرفتار کروانا سراسر ناانصافی ہے۔ میں ایک کو جانتا کہ یہ جو مجرم بنائے ہیں یہ بے قصور ہیں، یہ نہ حق دیں ان دی وجہ کہ مدعیاں نے جو ہے نا انہیں کو چنے تھے، لہذا مدعی جو ہے نا وہ انہیں اپنی تحقیقات نہیں کرائی جو ہے نا کہ کون ہے مجھے، لہذا میں ریکویسٹ کریں نا وزیر اعلیٰ پنجاب کو اور آر پی او صاحب کو، ڈی پی او صاحب کو کہ یہ جو ہے نا تحقیقات کریں کہ کون مجرم۔ اس طرح اصل ملزمان تک پہنچنا مشکل کر دیا گیا ہے۔ لواحقین نے کہا کہ پولیس نے تفتیش درست طریقے سے نہیں کی، اعلیٰ پولیس افسران نئے سرے سے تفتیش کروائیں تو اصل ملزمان سامنے آ جائیں گے۔ مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ جن ماں بیٹی پر تیزاب پھینکا گیا ان کی گھریلو رنجش تھی۔ انہوں نے مطالبہ کی کہ صاف اور شفاف تحقیقات کی جائیں تاکہ کسی بے گناہ کو سزا نہ ہو۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔ جہانیہ میں بدبخت سوتیلے بیٹوں کا بیوہ ماں پر تشدد گھر سے نکال دیا، تشدد کی ویڈیو بھی بناتے رہے۔ بیوہ خاتون فریاد لے کر ڈی ایس پی دفتر پہنچ گئی۔ 4 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا مگر ملزمان ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکے۔ جہانیہ کے نواحی علاقہ 122 ٹینار میں ظلم کی انتہا، سوتیلے بیٹوں نے بیوہ ماں پر تشدد کر کے گھر سے نکال دیا۔ بیوہ خاتون کوثر بی بی کا کہنا تھا کہ اس کے 4 سوتیلے بیٹوں نے اس پر تشدد کیا اور گھر سے نکال دیا۔ وہ تشدد کی ویڈیو بھی بناتے رہے۔ تھانہ ٹٹا صادقآباد پولیس نے مقدمہ درج نہ کیا تو ڈی ایس پی جہانیہ امداد بلوچ کے سامنے پیش ہوئی اور سارا واقعہ سنایا، جس پر انہوں نے فوری مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا۔ مقدمہ تو درج ہو گیا مگر تاحال ملزمان گرفتار نہیں ہو سکے۔ 4 بیٹیوں کے ساتھ رہتی ہوں اور سوتیلے لڑکے فرمان علی اور دوسرے بھائی میرے پہ ظلم کرتے ہیں اور مارتے ہیں اور تشدد کرتے ہیں، گھسیٹتے ہوئے باہر نکال دیتے ہیں اور گھر کا سارا سامان وغیرہ انہوں نے چوری کر لیا ہے اور چھتیں وغیرہ سب توڑ دی ہیں اور چھت کا سامان بھی اٹھا کے لے گئے ہیں۔ گھر میں میٹر تھا وہ بھی لے گئے اور آس پاس اگر محلہ کوئی میری مدد کرتا تو ان کے ساتھ بھی جھگڑا کرتے ہیں۔ اہل علاقہ کہتے ہیں کہ ملزم 3 بھائیوں کے ساتھ آئے روز تشدد کا نشانہ بناتا ہے اور گھر مسمار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ملزمان گھریلو سامان کے ساتھ ساتھ بجلی کا میٹر اور پانی کی موٹر بھی لے گئے ہیں۔ گھر میں موجود پانی والی ٹینکی بھی توڑ دی ہے۔ بی بی کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، اس کا لیٹرین غسل خانہ بھی بند کر رکھا ہے، پھر اس کی موٹر بھی اتار کے لے گئے، اس کا تیرا صاحب بلا کر میٹر بھی اتار کے لے گئے۔ جے کوئی مطلب گوانڈی اس نے تار دے ویسے وہ تار بھی کٹوا دیتا ہے۔ جے اس کو پانی دیتے ہیں کولر میں تو وہ پانی بھی میرا اس کو گالیاں نکالتا ہے، اس کو میرا برا بلا کہندا ہے۔ پھر اس نے جے کو شیر آٹا لینے کی کہندی ہے بھی میرے پاس کھانے کے موجود کوئی نہیں کوئی چیز، تو جو کو دیوا اس کو بھی گالی نکالتے ہیں۔ 4 بیٹوں کی بیوہ ماں نے اہل علاقہ کے ساتھ احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، ڈی پی او خانیوال اور آر پی ایم ملتان سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ زین یوسف، روہی نیوز، جہانیہ۔ میاں والی میں مزدوروں کے حقوق کون دلوائے گا؟ سرکاری قوانین پر عمل درآمد کے لیے قائم لیبر ڈپارٹمنٹ صرف 1 کلرک پر چلنے لگا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ویلفیئر لیبر کی اسامی 7 سال سے خالی پڑی ہے۔ میاں والی میں حکومت پنجاب کی مقررہ کردہ اجرت پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ بھٹا مالکان مزدوروں کو من مرضی کی دہاڑی دینے لگے۔ غریب مزدوروں کی داد رسی کے لیے لیبر ڈپارٹمنٹ کی سرگرمیاں صفر ہیں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر خوشاب کو میاں والی آفس کا چارج سونپا گیا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے میاں والی آتے ہیں۔ مزدور طبقہ پس رہا ہے مگر ضلع انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے۔
मजदूरों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर की खाली आसामी पर फौरी तौर पर तैनाती की जाए। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही मियांवाली। अब आपको बताएं, जलालपुर पीरोवाला में महकमा ज़राअत हुकाम की मुबैना नाअहली, कपास की फसल पर वायरस और सफेद मक्खी का हमला। काश्तकारों का कहना है कि कपास की फी एकड़ औसत मुतासर होने का भी खदशा है। जलालपुर पीरवाला में कपास की फसल महकमा ज़राअत की मुबैना नाअहली की भेंट चढ़ गई। कपास की बढ़ोतरी के दौरान ज़रई माहिरीन की अदम तवज्जो के बाइस कपास में मौजूद वायरस और सफेद मक्खी की बरवक्त तशखीस न हुई, न ही इसके तदारुक के लिए काश्तकारों को कोई तजवीज दी गई। काश्तकारों का कहना था कि बीमारी के बाइस कपास फी एकड़ 20 मन कम होने का खदशा है। असाकड़ा चाहते हैं कि फील्ड ऑफिसर आवन गुजरात वगैरह चेक करें फसल वगैरह, ताकि सारी फसल कोई बच वजे। फील्ड ऑफिसर कोई क्या नहीं आता चेक करन ते हुण औसत आंदी पई 8 to 10 मिनट, पहले आंदी 35 to 40 मिनट। काश्तकारों का कहना था कि ज़रई माहिरीन की जानिब से मुख्तलिफ बीमारियों के तदारुक बारे आगाही दी जाती तो कपास की पैदावार में कमी का सामना न होता। दूसरी जानिब महकमा ज़राअत हुकाम का कहना था कि रवां साल गर्मी के 22 कपास समेत दीगर फसलें मुतासिर हुई। हम ज़रई माहिरीन फील्ड में हर वक्त मौजूद हैं। ज़राअत मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी के मानद है। इस वक्त किसान मुआशी बहरान का शिकार है। महकमा ज़राअत की मुबैना नाअहली काश्तकारों के लिए मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। कैमरामैन शेख नदीम के साथ वक्कास सिद्दीकी, रोही, जलालपुर पीरवाला। मियांवाली के इलाका मूसावाली का रेलवे फाटक अरसा दराज से गैर फाल। रेलवे हुकाम ने बकाया साथ की अदम फराहमी के बायस फाटक को बंद किया था। फाटक बंद होने से शहरी मुश्किलात से दो चार हैं। मियांवाली के नवाई इलाका मूसावाली का रेलवे फाटक गुज़श्ता 1.5 साल से बंद है। तहसील कौंसिल पिपला ने रेलवे हुकाम के साथ मुआहदा किया था। रेलवे हुकाम ने बकाया जात की अदम फराहमी के बायस फाटक को बंद किया। अहले इलाका का कहना है कि शहरी मोटरसाइकिल और गाड़ियां रेलवे लाइन से गुजारते हैं, जिसकी वजह से कोई हादसा पेश आ सकता है। इमरजेंसी की सूरत में कई किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। 1 साल थी गई है, ये फाटक बंद थी पई है। साडा मरीज जेड़ा होवे 10 किलोमीटर असान बहुत ज्यादा फासला तय करना पौंदा है। साडे नाल ही रकबा है, असां इथों टप ना सकदे। अगर असां रेलवा क्रॉस करेने चिंता होंदा, निक्के निक्के बाल उन रेड़ियां घिन के आंदे पे, घाह घिन के आंदे पे, रेलवे नू क्रॉस करेने ए न होवे कि कंहिं दी कोई वड्डा कंहिं दे हादसा इजा ते पेश आ वने। असां इंतजामिया नू, तहसील इंतजामिया और जिले इंतजामिया और हुकूमत नू आखसूं कि फिल फौर जेड़ी है ए फाटक खोली वने। शहरियों ने जिले इंतजामिया से नोटिस लेकर रेलवे फाटक को बहाल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही मियांवाली। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब बात करेंगे फोर्ट अब्बास की मुतअद्दिद सड़कें टूट फूट का शिकार, शहरियों को सफर करने में मुश्किलात का सामना। शहरी कहते हैं सड़क पर पड़े गड्ढे हादसा का सबब बन रहे हैं। फोर्ट अब्बास की राब्ता सड़कें अरसे दराज से टूट फूट का शिकार। टूटी फूटी सड़कों पर सफर करना शहरियों का मुकद्दर बन गया। शहरी कहते हैं कि शहर को हारूनाबाद से मिलाने वाली सड़क को 10 साल गुजर जाने के बाद भी ना बनाया गया। सड़क पर पड़े गड्ढे हादसा का सबब बन रहे हैं। मिनटों का सफर घंटों में तय होता है। खस्ता हाल सड़कों के बायस गाड़ियां खटारा बन रही हैं। शहरियों का कहना था कि इमरजेंसी की सूरत में मरीजों को अस्पताल ले जाने में मुश्किलात का सामना है। अक्सर मरीज रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। इंतजामिया को कई बार दरखास्तें दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तकरीबन 10 साल से ये रोड ख़राब है और इसी रोड में हमारा रेस्क्यू टीम वालों का दफातर भी इधर ही है और हमारा जो हेडक्वार्टर अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, वो भी इधर ही है। और हम वज़ीर आला पंजाब से कहते हैं कि हमारा ये रोड सही करवाया जाए। तकरीबन 10 साल से ये रोड ख़राब है। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेकर सड़क की मुरम्मत करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन इमरान ताहिर के साथ मियां आमिर सखेरा, रोही, फोर्ट अब्बास। कोटमिठन के इकलौते गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज की हालत इंतहाई खराब है। जगह जगह खारदार झाड़ियां उगाई। मकामी अफराद ने कॉलेज को जानवरों की चरागाह में तब्दील कर दिया है, जबकि 2 साल पहले सीवरेज के पानी की वजह से गिरने वाली दीवार भी दोबारा तामीर न की जा सकी। शहर फरीद का इकलौता गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज अब मोहाली का शिकार। मुस्लिम लीग नून के साबिक दौरे हुकूमत में बनने वाला कॉलेज मुनासिब देखभाल न होने की वजह से खस्तियाली का शिकार हो गया। 2 साल पहले सीवरेज के पानी की वजह से कॉलेज की दीवार गिर गई, जो अभी तक दोबारा तामीर न हो सकी। कॉलेज में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। खारदार झाड़ियां भी उगी हुई हैं। अब तो मकामी लोगों ने कॉलेज के अंदर अपने जानवर चराना भी शुरू कर दिए हैं। शहरियों का रोही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इनकी बच्चियां यहाँ तालीम हासिल करने आती हैं। 4 दीवारी न होने की वजह से सिक्योरिटी खदशात रहते हैं। 3-4 साल पहले ये बना हुआ गर्ल्स डिग्री कॉलेज है। एक मरहूम साबका MP सरदार आदर खान का एक तोहफा दिया हुआ था नून लीग की तरफ से। अब ये जिसकी 4 दीवारी जो है ना वो टूट
फूड का शिकार है, तफन फैला हुआ है, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। हमारी बच्चियां जो यहाँ गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने आ रही हैं वो बेपर्दा हो रही हैं। ज़्यादा हुकाम से, आला हुकाम से, डिप्टी कमिश्नर से और वजीरा से हमारी अपील है कि मेहरबानी करें, इसकी चारदीवारी पर जोर दें। नून लीग का दौर था, उस टाइम ये तामीर हुआ था। इस टाइम ये असर तकरीबन 2 साल से इसकी दीवार गिरी हुई है। यहाँ पर हमारे शहर की बेटियां बच्चियां यहाँ पर तालीम हासिल करती हैं। पर्दे का हिसाब देखा जाए तो उस लिहाज से भी बहुत मसला बनता है। मेरी कमिश्नर साहब से, वजीर आला साहब से ये अपील है कि इस तरफ खसूसी तवज्जो देते हुए दीवार को फौरी तौर पर तामीर कराया जाए। कमिश्नर डेरा गाजी खान और मुतलका हकाम कॉलेज की दीवार को फौरी तौर पर दोबारा तामीर करवाएं। कॉलेज में सफाई सुथराई के इंतजाम को भी बेहतर बनाया जाए ताकि बच्चियां साफ सुथरे और महफूज माहौल में तालीम हासिल कर सके। कैमरामैन रियाद मुस्तफी के साथ अफजल फरीदी, रोही, कोटमिठन। बाद आपको बताएं, पंजाब हुकूमत का एक और अहसन इकदाम। पंजाब सरकार किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर्स दे रही है। ग्रीन ट्रैक्टर के हसूल के लिए काश्तकार 10 अक्टूबर तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दे सकते हैं। पंजाब सरकार ज़रूरी तरक्की के लिए मुतहर्रिक, हुकूमत किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर दे रही है। डायरेक्टर ज़राअत जमील गौरी का कहना था कि पंजाब हुकूमत किसानों को फी ट्रैक्टर 10 लाख रुपए सब्सिडी देगी। रहीम यार खान, बहावलनगर और बहावलपुर के 1383 काश्तकारों को ट्रैक्टर दिए जाएंगे, जिसके लिए ऑनलाइन दरखास्तों की वसूली का सिलसिला जारी है। डिवीजन बहावलपुर में 1300-1350 के करीब जो है वो ट्रैक्टर जो है वो दिए जाएंगे और उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो ली जा रही हैं। उसका पोर्टल का लिंक भी जो है वो काश्तकारों को शेयर किया जा चुका है और 10 अक्टूबर जो है इसकी आखिरी तारीख है। 10 लाख रुपए एक ट्रैक्टर पर जो है वो सब्सिडी दी जाएगी काश्तकारों को, छोटा ट्रैक्टर हो या बड़ा ट्रैक्टर हो। डायरेक्टर ज़राअत जमील गौरी का मजीद कहना था कि ग्रीन ट्रैक्टर के हसूल के लिए काश्तकार 10 अक्टूबर तक दरख्वास्त दे सकते हैं। कुरानंदाजी के जरिए ट्रैक्टर लेने वाले काश्तकारों के नाम निकलेंगे। कोटा इसका मुख्तस किया गया है तो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है इसकी कुरानंदाजी अलहदा से होगी और कुरानंदाजी के बाद जो कामयाब करार दिए जाएंगे काश्तकार, उनको फिर जो है वो ट्रैक्टरों की डिलीवरी होगी एज पर पॉलिसी। बावलपुर जिला में 410 ट्रैक्टर सब्सिडी पर दिए जाएंगे। काश्तकारों ने पंजाब सरकार की ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम को खूब सराहा। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। मुल्तान में पीसीजीए की हल्फ बर्दारी तकरीब का इनेकाद। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। मुल्तान में चेयरमैन सेनेट की पीसीजीए की हल्फ बर्दारी तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। यूसुफ रजा गिलानी का तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए कहना था कि SIFC का फोरम 1 विंडो ऑपरेशन फराहम कर रहा है। मार्कअप की शरह सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे। फोरम है SIFC का जो अंडर 1 रूफ 1 विंडो ऑपरेशन वो हो रहा है और उससे एक फ़ायदा होगा कि आपको बहुत से वसाइल जो आपके दरकार होंगे वो एक विंडो ऑपरेशन के ज़रिए आप तक मुहैया किए जाएंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का मजीद कहना था कि IPP से पैदा बिजली की कीमतों में कमी की जाएगी। कॉटन के लिए सेनेट का फोरम और कमेटियां हाजिर रहेंगी। ज़रूरी पैदावार दरामद करने से हमारी सनत को नुकसान हो रहा है और कॉटन को हमने इसको रिवाइव करना है और अंडर द एबल लीडरशिप जो स्टेज पर आज यहाँ तशरीफ फरमा है, मुझे कभी यकीन है इनकी काविशों की वजह से और पार्लियामेंट की सपोर्ट की वजह से और हुकूमत को भी हम ये कहेंगे कि इसको आप अवलीन तरजीह दें और SIFC में भी टेकअप किया जाए कि इसको अंडर 1 विंडो ऑपरेशन इसको ज़्यादा से ज़्यादा मराद दी जाए। तकरीब के आखिर में पाकिस्तान कॉटन जीन्स एसोसिएशन के 9 मुंतखब अहदेदारान ने हलफ उठाया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने इनसे हलफ लिया। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ सैयद जुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। सड़कें बहाल तो पंजाब खुशहाल। कोटशुट्टा में पंजाब खुशहाल प्रोग्राम के तहत सड़कों की तामीर का आगाज हो गया। पंजाब खुशहाल प्रोग्राम के तहत कोटशुट्टा में सड़कों की बहाली के काम का आगाज हो गया। चोटी रोड और झोकुतरा रोड की असर-ए-नौ तामीर का आगाज हो गया। 16 किलोमीटर तवील चोटी रोड की तामीर पर 32 करोड़ जबकि 9 किलोमीटर झोकुतरा रोड की तामीर पर 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दोनों सड़कों की तामीर 9 माह में मुकम्मल होगी। शहरियों का रोई से गुफ्तगू में कहना था कि कोटशुट्टा की अहम सड़कें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार थीं। अवामी नुमाइंदगान की काविशों से सड़कें तामीर होने जा रही हैं। सड़कों की
तामीर से हादसात में कमी के साथ ट्रैफिक के मसाइल का भी खात्मा होगा। चोटी रोड और कोरछुटा झोंकतरा रोड ये टूटे हुए थे, यहाँ पे ट्रैफिक का चलना बहुत मुश्किल था। आए रोज हादसा थे। सरदार अवैस अहमद खान लगारी हमारे वफाकी वजीर और उनकी MPA की टीम जो है उनकी कोशिश ये रोड बढ़ रहे हैं और आवाम को सहूलत मुयसर होगी। साढ़े एडू रोड हैं जरे बहु अहम हैं, जरा झोंक उतरा रोड है, चोटी रोड है, सरदार अवैस अहमद खान लगारी की मेहरबानी है जितना कुछ करने पर बेहतरीन थी पे ये रोड जले बन गया अस आवाम को बहुत सहूलियात मिल गई थी। वफाकी वजीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लिगारी का कहना था कि सड़कों की तामीर शहरियों का मुतालबा था जिसे पूरा कर दिया है। सड़कें तामीर होने से शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात मैसर आएंगी। कैमरा टीम कैमरा राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोट छुट्टा। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना है।